Hello students, once again I Pramod sir welcome you all in 7th standard maths period. So students, in the lesson 6th lesson algebraic expressions and identities, we have seen first two questions of exercise 6e. Now students, I have written some examples of question number 3, that is B, D, E, and the question number 4. So let us see what is mentioned here. Find the value of the expression substituting the given value of the unknown. That means students, हमको unknown की वैल्यू यानी वेरिएबल की वैल्यू मेंशन की है और we have to find out the value of the given expression, right? So students, you can see here in the very first question, x minus 3 is the expression, and here we know the value of 3, of course it is 3, यानी जो कांस्टेंट है उसकी तो वैल्यू जैसी की वैसी दिखती है, बट व्हाट इज अननोन हियर unknown is x, and if the value of unknown is given, it is 50, x equals to 50. We have to find out the value of this expression now. So it's very easy students, we know it very well that x minus 3 ये expression की हमको वैल्यू निकालनी है. So what we are going to do, x की जगह what is mentioned, the value of unknown is given to us and it is 50. So instead of x मैं 50 रख रहा हूँ. So what will be this now? x की जगह मैंने क्या रखा स्टूडेंट्स 50. So expression की वैल्यू कितनी मिल गई, 50 minus 3, that is 47. So it was very easy question. Now students, we can see here the next question D, 20 minus in bracket m plus n. Here two unknown are there, that is two variables m and n are used, and the value of these unknown are given. n की वैल्यू 6 and n equals to 3. तो हमको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है. The expression is 20 minus in bracket m plus n. So 20 minus in bracket m, the value of m is 6 plus 3, n की वैल्यू क्या है, m plus n यानी 6 plus 3, n की वैल्यू 6 और n की वैल्यू 3. Now students, what will we get, 20 minus 6 plus 3, ब्रैकेट को अगर हम सॉल्व करते हैं तो 9 माइनस इन ब्रैकेट 9 यानी माइनस 9 हो जाएगा, राइट स्टूडेंट्स, 6 plus 3 9 हो जाएगा. तो 20 minus 9. So 20 minus 9 is nothing but 11. So students, ये जो हमारा एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू 11 हो जाएगी if the value of the unknown are m equals to 6 and n equals to 3. It was once again very easier question. Now students, let us see the next one. The unknowns are p and q. So in bracket p plus q minus in another bracket p minus q. It is the expression students. So it's very easy now. The value of p is 8 plus the value of q is 4. So 8 plus 4 हो गया. In another bracket 8 minus 4. p minus q की जगह 8 minus 4 हमको लिखना पड़ेगा. 8 plus 4 यानी 12 minus 8 minus 4 यानी 4 हो जाएगा. कितना हो जाएगा, ये देखो, अगर मैंने ऐसा लिखा 8 minus 4, अगर मैं ब्रैकेट सॉल्व करता हूँ पहले तो 8 minus 4 4, तो इसके बाद में भी एज इट इज आएगा 12 minus 4 आएगा. So 12 minus 4 is 8. 12 minus 4 is 8. So the value of the expression is 4. So students, I hope these are the very easier questions and the remaining one you will solve them very easily. Now students, moving further, question number 4 now. Write the following as a formula. हमको फार्मूला के फॉर्म में लिखना है. A, the cost C of a number of books. कॉस्ट को उन्होंने C से मेंशन किया है, स्मॉल अल्फाबेट C से, of a number of books is the product of the number of books and the price P per book.
यानी एक बुक की कीमत है, प्राइस है P और नंबर ऑफ बुक्स हमको कितने लेने हैं N, तो कॉस्ट C क्या होगी? वेरी इजी, इट इज मेंशन दैट इट इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ द कॉस्ट C is the product of number of books and P into P। हम ऐसा भी लिख सकते हैं N into P, या फिर हम ऐसा भी लिख सकते हैं C is nothing but NP, one and the same, NP is nothing but N into P। तो स्टूडेंट्स ये बहुत इजी क्वेश्चन था, समझ लो एक बुक की प्राइस 5 रुपये है और मुझे अगर 4 नंबर ऑफ बुक्स लेने हैं तो कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 5 into 4। So it was very easier question. So it is the formula. What we have did here? We just write the formula as per the question. Okay. Now the next one, the selling price S, selling price को S से डिनोट किया है, of a guitar, एक गिटार है उसकी सेलिंग प्राइस is equal to the cost plus the profit P on it। अरे वाह, ये भी बहुत इजी है स्टूडेंट्स। यानी अगर एक गिटार मेरे पास में है, उसको मुझे बेचना है, तो उसकी जो मैंने कॉस्ट प्राइस है, जो जितने रुपए में मैंने लिया था, समझ लो 100 रुपये में मैंने लिया था, और उसका जो प्रॉफिट है ऑन इट, उस गिटार के ऊपर मुझे अगर प्रॉफिट कमाना है, मान लो 25 रुपया मुझे प्रॉफिट कमाना है, तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएंगी? कॉस्ट प्राइस C प्लस प्रॉफिट P, इन दोनों की सम अगर करता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएंगी? सेलिंग प्राइस 100 + 25, यानी 125 में मैं उसको बेचूंगा। तो सेलिंग प्राइस S क्या होगी? इट इज नथिंग बट कॉस्ट C प्लस द प्रॉफिट P। Once again it was very easier. Now the next question students, see the sum of the angles A, B and C of a triangle is 180 degree. It is also very easy students. If it is a triangle ABC, उन्होंने ये बोला है कि तीनों एंगल की सम जो है 180 डिग्री है, तो ऑफ कोर्स एंगल A, ऑलवेज जो ट्रायंगल होते हैं उनकी ऑल द एंगल्स सम कितनी होती है? 180 डिग्री। The sum of all angles of a triangle is 180 degree. It is the property. तो इन्होंने एंगल मेंशन किए हैं A, B और C, तो हमको भी वही लिखना पड़ेगा। अगर यहाँ पर PQR है तो हमको PQR लिखना पड़ेगा। That's it. एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, the sum is 180 degree. ये भी बहुत इजी था। That is the formula when the triangle is ABC. Angle A plus angle B plus angle C equals to 180 degree. The area A of a square, एरिया को A से दिखाया है, is equal to the square of its side A. Okay, अगर एक स्क्वायर है स्टूडेंट्स और उसकी साइड A है, स्मॉल अल्फाबेट A को उन्होंने यूज किया है स्क्वायर की साइड दिखाने को, तो उसका एरिया होगा, साइड इनटू साइड हम बोलते थे, तो वैसे ही A into A एक्चुअली क्या आता है? A स्क्वायर आता है। सो स्टूडेंट्स इंस्टेड ऑफ दिस उन्होंने क्या बोला है? देखो वन एंड द सेम ही है, इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स साइड, इसके साइड का स्क्वायर, ये भी बराबर है A into A, यानी इसका मतलब होता है साइड उन्होंने A दी है स्मॉल अल्फाबेट, तो A स्क्वायर, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। So once again it was very easier. Now students the next one, fourth E. The area A of a rectangle having length L and breadth B is the, यानी students what is given? Rectangle is given, length L is given and breadth B is given, right? Length L and breadth B is given. Then the area is the product of its length and breadth. Length और breadth का जो product होगा, it is nothing but area. So it's very easy. Area A is nothing but the product of length and breadth. ऐसा भी लिख सकते हैं या फिर L equals to LB भी लिख सकते हैं, one and the same. Now students, let us see some examples from chapter Jacob. Okay.
So students, the sixth one I have chosen one question here. Find the sum of minus 8a square b plus 3ab square minus ab, and another expression is 6a square b plus twice ab square minus 2ab. So students, इनकी सम निकालनी है तो it's very easy. You know it very well students. So let us start from here. First expression minus 8a square b plus 3ab square minus ab. सम करनी है तो प्लस करना पड़ेगा. Now another expression 6a square b plus twice ab square minus twice ab. Okay, इक्वल टू हम लिखते हैं और इधर ऐसा लिखते हैं. सो स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, यू नो इट वेरी वेल नाउ. सो पहला जैसा का वैसा लिखना पड़ेगा विद साइंस. माइनस 8a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर. सिंबल्स एज इट इज रहेंगे स्टूडेंट्स. पहला ब्रैकेट है माइनस ab. नाउ स्टूडेंट्स, ड्यू टू दिस प्लस, यू नो दैट प्लस की वजह से साइंस चेंज नहीं होंगे, क्योंकि प्लस इंटू प्लस प्लस ही आता है, और प्लस इंटू अगर माइनस किए तो माइनस आ जाता है, यानी प्लस का प्लस रहेगा, माइनस का माइनस रहेगा. सो प्लस 6a स्क्वायर b प्लस ट्वाइस ab स्क्वायर माइनस ट्वाइस ab. नाउ स्टूडेंट्स, वी हैव टू फोकस ऑन लाइक टर्म्स. यू नो इट वेरी वेल. Like terms are minus 8a square b. इधर देखो a square b किधर है? Here you can see plus 8a square b. ये हो गया plus 6a square b. Now students, plus 3ab square, ये हमने सेकंड वाला लिया है टर्म, plus 3ab square. ab square किधर है? इधर है. प्लस ट्वाइस ab स्क्वायर, ये भी हो गया. नाउ स्टूडेंट्स, द थर्ड वन माइनस ab. मैंने लिख दिया जैसा का वैसा. पहले साइन के बारे में सोचना पड़ता है. माइनस ab हो गया. और कोई है क्या ab वाला टर्म? यस, माइनस 2ab इज देयर. नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट वी डिड, हमने एक दूसरे के पास में लाइक टर्म्स को ला दिया. दीस टू आर देयर फर्स्ट. सो the answer is now minus 8a square b plus 6a square b. minus 8 plus 6 means minus 2 होता है. a square b, पहले दो को हमने सिंप्लीफाई किया स्टूडेंट्स. नाउ द नेक्स्ट टू प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2 यानी प्लस 5. लाइक टर्म्स में हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं. यू नो इट वेरी वेल. नाउ ab स्क्वायर, राइट. And then students, minus ab minus 2ab, यानी minus 1ab minus 2ab means minus 1 minus 2, यानी minus 3 आएगा, minus 3ab. और therefore देकर हमको आखिरी का आंसर लिखना चाहिए. ये आपको पता है, क्वेश्चन एंड आंसर. Now students, you can see here I have written 7th question, subtract, and example F मैंने लिखा है. So let us see ये क्या है. माइनस 9 माइनस 7b, यानी सब्ट्रैक्ट करना है इसको फ्रॉम माइनस 3a माइनस 4b, यानी इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है. तो स्टूडेंट्स, इसमें से किसको सब्ट्रैक्ट करना है ये भी बहुत मायने रखता है. आपने देखा होगा स्टूडेंट्स कि अगर मैं खाली माइनस 2 करता हूँ तो 3 मिलता है, और 2 माइनस 5 करता हूँ तो माइनस 3 मिलता है. आपको ये भी पता है कि a माइनस b इज नॉट इक्वल टू b माइनस a, ये सेम नहीं होते हैं. सो बी केयरफुल स्टूडेंट्स दैट कौन सा पहले लिखना है और बाद में सब्ट्रैक्ट कौन सा है. वी शुड नो इट प्रॉपरली. सो व्हाट कैन वी राइट दिस वन फर्स्ट इन ब्रैकेट ऑफ कोर्स. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, सब्ट्रैक्ट. यहाँ पर सम का था, अब ये सब्ट्रैक्ट का है, माइनस, और ब्रैकेट में पूरा नेक्स्ट एक्सप्रेशन माइनस 9 है माइनस 7 और इक्वल टू करके हम इधर लिख सकते हैं. ओके, इक्वल्स टू.
माइनस 3a भी एज इट इज आएगा, माइनस 4 भी एज इट इज आएगा, मगर ड्यू टू दिस माइनस ऑल दिस विल चेंज, माइनस इंटू माइनस प्लस 9a और माइनस इंटू माइनस प्लस 7b। नाउ लाइक टर्म्स, ये है लाइक टर्म्स a वाले, माइनस 3a प्लस 9a एंड द रिमेनिंग वन माइनस 4b प्लस 7b, माइनस 4b plus 7b. So students, it's very easy now. Minus 3a plus 9a, that means minus 3 plus 9 is nothing but 6. So 6a minus 4b plus 7b means minus 4 plus 7 means plus 3 and b is there, so plus 3b. So therefore करने के बाद में पूरा क्वेश्चन लिखेंगे और आंसर लिखेंगे 6a plus 3b. Now students, the next question, I have chosen two word problems. Actually all the problems are easy, but let us see two questions, 9 and 10. How much smaller is first expression than second expression? पहला expression कितने से छोटा है than ये दूसरे से, ऐसा उन्होंने दिया है। तो हमेशा मैंने बताया है स्टूडेंट्स की इसको हम जनरलाइज करना चाहिए, बहुत इजी वाला कॉन्सेप्ट होता है ये एक्चुअली। उसको हम छोटे छोटे नंबर लेकर भी समझ सकते हैं। समझ लो हाउ मच स्मॉलर इज, यानी ये समझ लो, मान लो मैंने 5 को चूज किया, हाउ मच स्मॉलर इज 5 देन 9। अगर ऐसा मैं बोलता हूँ 5 9 से कितने से छोटा है, तो आप क्या बोलोगे सर 5 से, क्योंकि 9 माइनस 5 करोगे। तो वेरी इजी कॉन्सेप्ट है। दैट मीन्स व्हाट, वी शुड सब्ट्रैक्ट द फर्स्ट एक्सप्रेशन फ्रॉम द सेकेंड। हियर द सेकेंड वन आई एम गोइंग टू राइट, दैट इज 7 प्लस, यू कैन सी स्टूडेंट्स 5x² प्लस 3x। इसमें से मुझे फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, विच इज ट्वाइस x² माइनस ट्वाइस x प्लस 5। So you can see it was just an example of subtraction, मगर किसमें से किसको सब्ट्रैक्ट करना है that is more important, right? Okay, so first as it is 7 plus 5x² plus 3x, माइनस की वजह से पूरे सिंबल चेंज होंगे, माइनस ट्वाइस x² माइनस इंटू माइनस प्लस 2x या ट्वाइस x माइनस इंटू प्लस माइनस 5 इक्वल्स टू 7 के साथ में कौन आएगा, माइनस 5 आएगा। चलो पहले ये है तो यही लिख लेते हैं, प्लस 5x² के साथ में कौन आएगा, है क्या कोई, देख लो, माइनस ट्वाइस x² है, माइनस ट्वाइस x² माइनस ट्वाइस x², बाद में प्लस 3x के साथ में प्लस 2x है। ओके, प्लस 3x प्लस 2x। मैं उसके आगे ही लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स, इक्वल टू, आप इसके नीचे लिख लेना क्योंकि मुझे लाइन चाहिए फाइनल आंसर लिखने के लिए। सो 7 माइनस 5 तो बहुत इजी है स्टूडेंट्स, इक्वल टू कितना है 7 माइनस 5 2, 5x² माइनस 2x² यानी प्लस 3x² प्लस 3x² और प्लस 3x प्लस 2x मीन्स प्लस 5x। सो स्टूडेंट्स यू कैन सी दिस इज व्हाट वी नीड। तो ये है इतने से स्मॉलर है, देयरफॉर इट इज स्मॉलर, ऐसा भी लिख सकते हैं शॉर्टकट में, इट इज स्मॉलर बाय, ये ब्रैकेट में मैं आंसर लिख रहा हूँ 2 प्लस 3x² प्लस 5x। इसको डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर्स में भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिखे तो भी चलेगा। ओके, द नेक्स्ट वन नाउ, हाउ मच लार्जर इज दिस वन देन दिस वन। ये इससे बिल्कुल उल्टा है, देखो हाउ मच लार्जर इज पहला एक्सप्रेशन कितने से बड़ा है, समझ लो ये 5 है, देन 2 से कितने से बड़ा है, ऐसा ही हम सोचेंगे तो इसमें से ये माइनस करना पड़ेगा। हाउ मच लार्जर इज 5 देन 2, इसका आंसर 3 आता है क्योंकि 5 माइनस 2 करना पड़ता है। तो स्टूडेंट्स पहले एक्सप्रेशन से दूसरे एक्सप्रेशन को माइनस करना पड़ेगा। यहाँ पर हमने इसमें से इसको माइनस किया था। इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन, राइट? Otherwise, these all examples are very easy. So minus x² इसमें से माइनस करना पड़ेगा सेकेंड एक्सप्रेशन, राइट? So 5x² minus 3y²।
चलो इधर लिख लेते हैं अभी 9x स्क्वायर माइनस 8y स्क्वायर। बुक के अंदर ऐसी ही राइटिंग होनी चाहिए स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पर स्पेस बचाने के लिए मैं इधर ना लिखते हुए इधर लिखता हूँ, वो बात अलग है, मगर आपको बराबर लिखना चाहिए ये इस तरह से 9x स्क्वायर माइनस 8y स्क्वायर, ये माइनस की वजह से सिंबल चेंज होंगे, माइनस 5x स्क्वायर और माइनस इंटू माइनस प्लस 3y स्क्वायर, और बाद में इक्वल टू के नीचे इक्वल टू भी आना चाहिए। इस तरह से अगर राइटिंग होता है तो वो बहुत इम्प्रेसिव लगता है। ओके, तो 9x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर ये लाइक टर्म्स को मैंने नजीक लेकर आ गया, और माइनस 8y स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर लाइक टर्म्स को हमने नजीक ला दिया है अभी, राइट। सो यू कैन सी स्टूडेंट्स 9x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर एंड 4x स्क्वायर होगा, राइट, और माइनस 8y स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 8 प्लस 3 यानी माइनस 5। सो हम लिख सकते हैं इट इज लार्जर बाय 4x स्क्वायर माइनस 5। So students, you can see I have taken some specific examples from the chapter checkup as well, so that we can go through all sort of questions which we have already taken up to exercise 6E. So students, it is very important lesson when we considered 6th and 7th standard syllabus. Okay, so students, I hope you enjoyed this lesson, that is algebraic expressions and identities, and now students, see you in the next class. Bye bye.